Good evening, everyone. History of Pythagoras theorem. This is the topic what I have chosen as my first lecture. In fact, the most prominent mathematician of the modern mathematics is the Pythagoras. This is the Pythagoras theorem. A square on the hypotenuse is the sum of a square on the other two sides. Power and magic of Pythagoras theorem is such that its first instance theorem looks very complex and its proof is not appeared at the first instance. While when we go through with proof, we find a single time experience. That is the magic. A lot of people have changed their life only by knowing the Pythagoras theorem and to prove it in their own ways. The greatest one was the Einstein and a lot of other people. These number ABC are called triplets. Triplet means the number which satisfy this equation like 3, 4, 5. The square on the largest side will be the sum of the square on the other two sides. The other numbers may be like 12, 5, 13, 24, 7, 25 and any multiple of them. Got it? Now, sorry, it's new technology, which is, yes. It's a quick time frame. It's a quick time frame to put ourselves historically. This is 1 AD. There's nothing like 0 AD. This is 1000 AD. And this is 2000 AD. The current period. $2080. Nearly find out some here. The 1000 BC and it's a 2000 BC. It's a quick time frame. It's a 4,000 year history. There are a lot of political pickering in this period. Armies are coming back and forth. But that's not important. It's a politics. For the bigger picture, what is important is the ideas which converted into technology and serves the human being. A large scale agriculture production has started nearly 2000 BC, which resulted in the civilizations. The first civilization was the Mesopotamian civilization, called Babylonian civilization also. Babylonian civilization, Egyptian civilization, Indus Valley in the east, and the Chinese. Babylonian people have shown some glimpses of the Pythagorean theorem.
the Plimpton 322 placed in the Columbia University has given a series of 15 triplets, which was basically a trigonometric table. The Babylonian people were more interested in the squares and the rectangle, and even the half of the rectangle was a Pythagorean theorem, was the Pythagoras triangle. Any triangle which is a right angle will be called the Pythagorean triangle. The Egyptian people, on the other hand, have used triangles for making pyramids, and the present day, what is tan theta to us was sec theta to them. They have found the ratio of the hypotenuse and base, and this is the most important for them, how high they can reach. There's one more example of the Pythagorean theorem there. There was a ladder of 13 cubit, which was 5 cubit away from the wall, how high it will go on the wall. Cubit means a unit. This is elbow, this is a 3 finger, this is 1 cubit. Indus Valley, जो नहरें बनी हैं, जो ग्रेट बाथ है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो सब पैथागोरस थ्योरम की वजह से ही संभव है. चाइनीज सिविलाइजेशन में they have assumed the earth as a flat, and by assuming flat they have nearly accurately measured the distance between sun and earth. That was a very great achievement of the Chinese people of that time, Zhou Bai. And Pythagoras was born, this is 600 BC, where the Greek civilization starts, and it 600 BC, 600 BC will be somewhere here, 600 BC to 300 AD. This is the period of the Greek civilization. The great mathematicians, Pythagoras, Euclid, Archimedes, and Thales, they were all being born here, and they laid the foundation of mathematics. Even the word mathematics was being coined by them. I'm talking about this Greek civilization, not only the Greece. From like for example, the Euclid himself was born in Alexandria. Archimedes was born in Sicily. We will come back here very soon. ये इंडियन गणितज्ञों का पीरियड यहाँ से शुरू होता है, भारतीय गणितज्ञों का. और जैसा आप लोग को मालूम है, हम लोग के यहाँ अध्यात्म का विशेष जोर. एक नंबर सिस्टम हुआ करता था, उसके पहले 1 से लेकर 9 तक के नंबर हुआ करते थे, ऊपर की जगह खाली थी, which has been filled by the zero, शून्य जिसको बोला गया. और शून्य हम लोग के यहाँ एक अलग स्थान रखता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ. There was nothing. एक सीरियल था, नेहरू जी की बुक पे बना था, भारत एक खोज, उसका टाइटल सॉन्ग था कि जब कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं हमारे लिए द स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्स, और वहीं से सब आया है. तो शून्य वॉज डिफरेंट, इट वॉज रिलेटेड विद अध्यात्म. और यहाँ पे जो हम लोग के जो मैथमेटिशियंस हुए हैं, ये आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, डेसिमल सिस्टम देते हैं, जीरो देते हैं. किसी भी नंबर में जीरो जोड़ने पे सेम नंबर रहेगा, घटाने पे सेम रहेगा.
किसी नंबर में 0 से गुणा करने पे भी 0 आएगा, ये सारा इन लोगों ने दिया। और उसके बाद एक और नाम है माधवाचार्य। इन्होंने अनंत की परिकल्पना करी। जोड़ा जा चुका था, घटाया जा चुका था, गुणा किया जा चुका था, विभाग बाकी था, और माधवाचार्य ने भाग दे दिए। अनंत की परिकल्पना। केवल इतना ही नहीं, हर 2 नंबर के बीच में एक अनंत छुपा हुआ है। 1 से 2 के बीच में अनंत टुकड़े कर सकते हैं। अनंत हम ईश्वर से जोड़ते हैं। चलिए फिर कभी बात करेंगे हम लोग माधवाचार्य के बारे में। पूरे हमारे भारतीय गणितज्ञों का पूरा रहा है लगभग, जो भी पूरी गणित वो ईश्वर से जुड़ने के लिए है। एंड देन आफ्टर 1400 AD देयर इज अ ग्रेट एक्सप्लोजन इन द यूरोप, और तमाम बड़े मैथमेटिशियंस यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। पूरी मॉडर्न मैथमेटिक्स पूरी तैयार होती है। और मुझसे लेने के लिए कोई एक नाम अगर कहा जाए, जस्ट वन नेम इन द मॉडर्न मैथमेटिक्स, तो हम यूलर का नाम लेना चाहेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन दिस। Okay, coming back to I'm very sorry, I have not. So first lecture, this is Greece. This is Greece, the Greece Empire. Though this is a Greece, this was all Greece Empire. Pythagoras was born here in Samos. It's a Turkey, which was called Asia Minor at that time. यहाँ पे टर्की, यहाँ पे समूस में पैथागोरस का जन्म होता है। ये और पैथागोरस एक अमीर घर के हैं। पढ़ने लिखने के लिए अमीर होना बहुत आवश्यक हुआ करता है। गरीब लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं थी, स्पेशली ग्रीस के पीरियड, ग्रीक टाइम पर। और बहुत बड़े घर में पैथागोरस का जन्म हुआ था। और कोई अगर गरीब आदमी पढ़ने की कोशिश भी किया, अगर नए विचार आते हैं, पुराने ढर्रे पर चलना अलग चीज है, जब आप नए विचारों के साथ आते हैं तो सरवाइव करना मुश्किल होता है। सोक्रेटिस को तो जहर का प्याला पीना पड़ा। केवल इतना ही नहीं, समोस से हटने के बाद पैथागोरस जब क्रोटन जाते हैं, ये पैथागोरस पर ये सिसिली पे क्रोटन पहुंचते हैं ये, लेकिन उसके पहले ये पूरा घूमते हुए जाते हैं। पहले इजिप्ट जाते हैं, इनके वालिद साहब तिजारत के लिए पूरी दुनिया घूमते थे। पैथागोरस भी उनके साथ घूमने का उनको मौका मिला। बाद में 40 साल की उम्र में यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे वो अपना एक स्कूल शुरू करते हैं जिसको मैथमेटिको ही बोलते हैं। और जो कुछ भी अचीवमेंट्स उस स्कूल के होते थे वो सब पैथागोरस के नाम पर संग्रहित किए जाते थे। किसी स्टूडेंट का, किसी का उनका अपना नहीं हुआ करता था। These are the teachers of the Pythagoras. Most important was Anaximander. Anaximander himself was a student of Thales. बिलेट साहब के भी, और जिस आदमी ने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था वो थे ऑर्फस। पैथागोरस ने जो कुछ बड़ी कुछ डिस्कवरीज करी, उनमें से एक था √2 is an irrational number. It's a very great discovery which he proved also. √2 is an irrational number. This is a natural number. Natural in the sense, not by definition of the natural number, by sense it is being found in the nature. How come? I tell you, like if you throw object with a speed of √GRE, it will revolve around the earth. But if you throw an object with √2 GRE, it will never come back. It will go to the infinity. That is the magic of the √2. Pythagoras has word in the music also.
वो जो सारे गामा पाधा निसा आप जो सुनते हैं, ये पैथागोरस ने स्ट्रिंग पे निकाला था रेशियो से 3:4, 5:6, 6:7, 8:9 के रेशियो से उन्होंने तमाम धुनें निकाली और ईश्वर तक पहुंचने के लिए उन्होंने गणित और म्यूजिक दोनों का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल क्या किया मतलब इन दोनों को साधन बनाया ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ग्रीस पीरियड में उस टाइम पे आत्मा अमर है और वो री इनकारनेशन में बिलीव करते थे। री इनकारनेशन मतलब कि पुनर्जन्म, जिसको हम लोग जानते हैं, जो हमारे वैदिक संस्कृति से हम लोग को निकलता है, पुनर्जन्म। तो ये उस समय के जो ग्रीक फिलोसफर्स थे वो इसमें बिलीव किया करते थे। पैथागोरस भी इसमें बिलीव करते थे और इसलिए वो ईश्वर तक पहुंचने के और उनके पूरा लाइफ वो लाइफ की मृत्यु के बाद क्या होगा उसके ऊपर गई और उनका अंत बहुत बुरा हुआ। वो डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलने लगे थे। वो कहते थे कि डेमोक्रेसी ठीक चीज नहीं है और जो लोग थे डेमोक्रेसी के फेवर में, उन लोगों ने पैथागोरस को उनके स्टूडेंट के साथ घेर करके 510 BC में पूरी बिल्डिंग को आग लगा दी गई थी। पैथागोरस उसमें थे कि नहीं थे, ये सब बातें मुश्किल है बताना, और लेकिन स्टूडेंट तो उनके सब मर गए थे इसमें श्योर, जो भी लोग थे। और नए विचारों को स्वीकार करना हमेशा से मुश्किल रहा है, कोई भी सोसाइटी रही, कोई भी जगह रही हो। आइए नेक्स्ट, दिस इज द प्रूफ प्रोसेस, दिस इज द यूक्लिड्स प्रूफ, इट्स कॉल्ड ब्राइडल चेयर प्रूफ, पिकॉक प्रूफ, विंडमिल प्रूफ। और ये जो मेसोनिक लॉज में जो कारपेट होती थी वहां पर कारपेट में डिजाइनिंग के लिए इस फिगर का इस्तेमाल किया गया है। यह बहुत ही क्लासिकल प्रूफ है, पहली बार हम लोग को क्लास 9th में इससे पारा पड़ता था। एक बार अमेरिका में इस प्रूफ को बंद कर दिया गया था, तो बड़ा ऑब्जेक्शन किया था वहां के लोगों ने कि साहब ये क्लासिकल फॉर्म ही अगर स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा तो वो लोग आगे कैसे करेंगे। वो जादुई सा ये फिगर था जिसको मिला। ये कहा जाता है कि ये पैथागोरस ने खुद प्रूफ दिया था, जो पैथागोरस की डेथ के 500 साल बाद खोजा गया था। कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है, ये 3:3 का एक स्क्वायर है, इसकी पूरे स्क्वायर की एरिया है 9, ये दो यूनिट का बेस, ये 2 यूनिट का बेस, ये 1 यूनिट का, इसके ऊपर स्क्वायर बनाया गया है। इस स्क्वायर की हमको एरिया चाहिए। एक ट्रायंगल ये है, 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 और सारे ट्रायंगल की एरिया जो है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप करेंगे तो आपको 1 ही आएंगे। तो 1 2 3 4, 9 में से 4 गए 5, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इसका 5, तो ये जो हाइपोटेन्यूस है वो √5 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। ये भास्कर का प्रूफ, इंडियन मैथमेटिशियन, वेरी सिंपल, सिर्फ फिगर बनाते हैं भास्कर और लिख देते हैं, सिर्फ फिगर बना करके, और कोई वर्ड नहीं लिखते हैं, वो लिख देते हैं सिंपल सी। देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा, थ्योरम प्रूफ होती है। ये जेम्स गारफील्ड प्रूफ है 1876 AD में। ये यूएसए के प्रेसिडेंट रहे, जब ये एमपी थे, जब कांग्रेस मेंबर थे, तब उन्होंने ये प्रूफ दिया था। इस प्रूफ के देने के, सॉरी ये भास्कर प्रूफ है, ये प्रूफ देने के
1 साल बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बन जाते हैं। बहुत सारे प्रूफ्स और भी हैं, ये हम लोग इसके बाद का नेक्स्ट प्रूफ, ये आइंस्टीन का प्रूफ सिमिलर ट्रायंगल से प्रूफ किया। और पहली बार डिस्कवरी का टेस्ट, डिस्कवरी का स्वाद आइंस्टीन को इसी टाइम पे मिला था। वो स्टूडेंट थे और अपने तरीके से प्रूफ किया था। ये है पाइथागोरस थ्योरम का जादू। उसके बाद की डिस्कवरीज आपके सामने आइंस्टीन की। इतने प्रूफ्स हैं, ये पास्कल हैं, इनके फादर तो इनको मैथ्स ही नहीं पढ़ने दे रहे थे। ये छुप के मैथ्स पढ़े थे और छुप के मैथ्स पढ़े और मैं पाइथागोरस का प्रूफ निकाल लिया। बाद में वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियंस के रूप में आए। ये इनका नाम सबको मालूम ही है, द परफेक्ट मैन, लियोनार्डो दा विंची। तो अगर परफेक्ट मैन है तो पाइथागोरस का आपने अपना प्रूफ निकाला ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हिगिंस वेव थ्योरी वाले, लेबनीज द ग्रेट मैथमेटिशियन, ढेर सारे प्रूफ निकाले। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? प्रूफ निकालने का अपना एक अलग सेंस था, टू सी अ डिस्कवरी फ्रॉम एज मेनी एंगल एज पॉसिबल। ये 1778 में 38 प्रूफ्स मिल चुके थे, पेरिस से बुक आई थी। 1880 में 46 प्रूफ मिले थे जर्मनी के। 1914 से 96 के बीच में हॉलैंड में, 1914 में एक बुक आई थी हॉलैंड से पब्लिश हुई थी, 96 प्रूफ थे। सबने छोड़ दिया कि बहुत सारे प्रूफ हो सकते हैं, इन्होंने नहीं छोड़ा। एल शालोमिस, ही बिलोंग्स टू ओहियो यूनिवर्सिटी यूएस से। 1927 में 230 प्रूफ उन्होंने कलेक्ट किए। इनके कलेक्शन में इनके टीचर्स ने, स्टूडेंट ने, इनके जान पहचान वालों ने, सब लोगों ने मदद करी। जिसको जहां से भी कोई नया प्रूफ मिलता तो लोग इनको ट्रांसफर करते थे। बाद में ये काफी सीनियर हो गए थे उस समय पर, उन्होंने एक नया ये दिया था, एक जो अगली बुक दी थी 1940 में, जिसमें 370 प्रूफ हुए। 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, ज्योमेट्रिक, एल्जेब्रिक, डायनामिक एंड क्वाटर्नियन। गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी तक 520 प्रूफ पाए जाते हैं। Why magical? Why the theorem is so magical? ये पहली थ्योरम है जहां पे आपको दूसरी तरफ कुछ नया मिलता है। आप लाइन से शुरू करते हैं, एक नई डिस्कवरी पे पहुंचते हैं। जनरल प्रूफ ऐसे भी हो सकते हैं, अगर हम देखें तो ये ज्यादा इस्तेमाल में आता है मैथमेटिशियंस के लिए। लेकिन ये किसी भी ट्रायंगल के लिए ये अप्लाई होता है। थीटा बराबर अगर 90 डिग्री रख देंगे तो फिर पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी। किसी भी थ्योरम के लिए अप्लाई होता है, लेकिन इसको करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम की खूबसूरती यह है कि बिना मैथमेटिक्स की नॉलेज हुए आपको वो प्रूफ, वो सारी बातें समझ में आ जाती। केवल इतना ही नहीं, इसकी एप्लीकेशंस हैं, प्रूफ की एक्सेसिबिलिटी है। और आप जब थ्योरम प्रूफ करके किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं, जब आप कोई डिस्कवर करते हैं, तो अपने आप को आप एक बेहतर लेवल पे पाते हैं। पहले से आप उठ चुके होते हैं। अपने आसपास की दुनिया, चाहे बढ़ई हो, चाहे टेलर हो, आर्किटेक्ट, सर्वेयर्स, इंजीनियर्स, हर एक के लिए पाइथागोरस थ्योरम काम की। राइट एंगल ट्रायंगल, सेट स्क्वायर, ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर से लेकर के कहीं भी आपको एक डिब्बा बनाना है जूते का या टीवी रखने के लिए, तो भी पाइथागोरस थ्योरम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 3D में आप करते हैं। कितने यूज क्या है। ये मिंकोविस्की
ने आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी में 4 डायमेंशन में इसका इस्तेमाल किया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी टी का होल स्क्वायर। सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी आइंस्टीन ने जो कर्व्ड स्पेस में वो एक्सप्लेन करते हैं तो भी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होता है। इली मेयर अपनी बुक में लिखते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम का जो पूरी हिस्ट्री है, पाइथागोरस थ्योरम से जो भूत निकलता है, जो घोष निकलता है, वो न जाने कितनी नई चीजों को जन्म दे देता है। जैसे फॉर्मेट्स लास्ट इक्वेशन, a to the power n is equal to b to the power n plus c to the power n is not possible for any number which is greater than 2, जो पाइथागोरस ने निकाल दिया था। उसके ऊपर के किसी भी नंबर के लिए ये इक्वेशन सही नहीं। 1994 में इसको प्रूफ हुआ और लगातार ये प्रॉब्लम बनी रही। पाइथागोरस थ्योरम की इंपॉर्टेंस इस बात से भी बढ़ती जाती है। केवल इतना ही नहीं, implausible at the beginning can be proved simply and convincingly even without the mathematical training. Hence, Plato onwards used it as a emblematic demonstration of reasoning itself। बहुत ही छोटे से चल के किसी बड़े रिजल्ट पे पहुंचना, सिंपल से चल के बड़े रिजल्ट पे पहुंचने में प्लेटो, उसके बाद के तमाम लोग रहे। हीगल इस प्रूफ को सुपीरियर टू ऑल अदर्स मानते हैं। superior to all others। ये फिलोसफर हैं, उनके लिए इसका मतलब है फॉर हिम एंड शोइंग हाउ एन आइडेंटिटी कंटेन्स डिफरेंसेस। जो क्रिटिक हैं यूक्लिड के जो क्लासिकल प्रूफ दिया था, जर्मन फिलोसफर है। थोड़ा सा मुश्किल हो गई हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को समझने में। वो कहते हैं कि ये जो प्रूफ है ये लॉजिकल है, ये रीजनिंग पर बेस है, इसमें मैथ्स कहां है? ये तो लॉजिकल है, रीजनिंग है, इंट्यूशन है ही नहीं। वो मैथ्स जिसमें इंट्यूशन ना हो, वो डिस्कवरी जिसमें इंट्यूशन ना हो, उसको हम कैसे कहते हैं? और पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में जो अनुभव होता है वो इतना थ्रिलिंग है कि आप जीवन में कभी भूलते ही नहीं। 9th क्लास में पढ़ी हुई थ्योरम आज तक सबको याद है। तमाम थ्योरम आपने पढ़ी, तमाम चीजें हुई, सब भूल गई, पर सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम याद रह गई। इट इज सो थ्रिलिंग। एक ऐसी लैंग्वेज में आपको उसका उत्तर मिलता है जो आपने पहले कभी आप जानते ही नहीं थे, और जब मिल जाता तो लगता है इसमें क्या खाबी है, तुमको पहले से मालूम था। अंत में, बिफोर एंडिंग द लेक्चर, बहुत प्रभाव डाला पाइथागोरस थ्योरम ने कई लोग के जीवन में। लेकिन जिस आदमी की जिंदगी बदल गई ही वो हॉब्स। जिसकी जिंदगी बदल गई ही वॉज हॉब्स। 16-17 सेंचुरी में थे हॉब्स। सोशल स्टडीज के थे, बहुत अच्छे स्कॉलर थे। 40 साल की उम्र तक कुछ ऐसा कर नहीं पाए थे जिससे वो अपने को कुछ अचीवमेंट कहते। एक ट्रांसलेशन किया था उन्होंने, एक ग्रीक फिलोसफर का, लेकिन ग्रीक हिस्टोरियन का, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन नहीं था।
ऐसे ही कभी घूमते घामते अपनी जान बचाने वाले के यहाँ गए। वहां पे उनकी लाइब्रेरी के टेबल पर एक बुक रखी हुई थी, यूक्लिड्स एलिमेंट 1। उसको पलटने लगे, प्रपोजिशन 47 मिला, वही प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यूक्लिड की एलिमेंट 1 16-17 सेंचुरी में बाइबल के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली और पढ़ी जाने वाली बुक रही है। और उन्होंने पढ़ा, उनके मुंह से निकला, बाय गॉड इट्स इम्पॉसिबल, और उनकी जिंदगी बदल गई। अब वो मैथ्स में वो मैथ्स की दुनिया में एंट्री ले लिए, मैथ्स में कुछ एक्सपेरिमेंट वो करने लगे, लेकिन बहुत अचीव नहीं कर पाए। और अपनी जो बाद में वो बुक लिखते हैं लेवाइथन, सेम चीज को अप्लाई करते हैं जो पाइथागोरस ने अप्लाई किया था। हॉब्स के ही टाइम पे गैलीलियो हैं, कोपरनिकस हैं, केपलर हैं, ये किसी को नहीं ये मान रहे हैं, सुन रहे हैं। सॉरी, ये गैलीलियो हैं और केपलर हैं, और किसी को ना मान रहे हैं ना सुन रहे हैं। और ये अपने कंटेम्प्रेरी फिलोसफर से कहते हैं कि आप लोग भी पाइथागोरस की तरीके से क्यों नहीं बढ़ते, सिंपल चीजों से उठिए और बड़े रिजल्ट पे पहुंचिए, जो इन्होंने खुद किया। हॉब्स बिगन टू रिकंस्ट्रक्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी इन सिमिलर वे। पहले एक छोटी छोटी चीजों की क्लियर डेफिनेशन हुआ टर्म्स के, और उसके बाद उनके इम्प्लीकेशंस को ऑर्डरली फैशन में पिरोया और रीजन का नया वे शुरू किया। और इस तरीके से उसके फायदे हुए कि बाद में पूरी दुनिया को उसके परिणाम मिले। थैंक यू।